Namaskar and welcome to another video presentation by International School of Hospitality Management. Here again, my name is Abhishek and I am here with another views and thoughts and topics related to hospital, hotels, hospitality, tourism and aviation. Today we have with us Ms. Anamika Das, who is a faculty of hospital management for our college. Welcome to our show, ma'am. Welcome, sir. Thank you very much for this show. I would have a certain amount of questions to you. The first question that I need to ask you is, ये hospital management क्या है क्या actually? Actually, management जो होता है, management का मतलब ये है managing the manpower. That's right. Okay. This is a basic funda for management studies. The hospital management is the thing you have to manage the manpower. Okay. And their skills and how to utilize them in the hospital industry. Okay. So you need to use the manpower in different industry, like in hotels or any corporate sectors. So like that, that's why we have a separate study or a separate degree to manage the manpower and their skills and their uses in the hospital sectors. That's why we are having a degree related to this. Okay. Now, so मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि who all are qualified to pursue a course in hospital management? Actually, it's not like that. The person who have science degree or science background can only apply for this course. The person who have any degrees like arts का भी, commerce का भी, या कोई भी person or who have already graduated there for any BSc or BCom or BA honors, they can also apply for master's degree for hospital management. Okay, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक science student ही होना चाहिए to do a hospital management course. I can be from science, arts and other courses also. That's great. So that's the reason why a lot of people, बहुत सारे students ये वाले course opt कर रहे हैं. So मुझे आपको एक बहुत ही I would not say controversial सवाल है, but क्या ये pandemic के बाद क्या जॉब्स का इंक्रीज हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में? हाँ, थोड़ा बहुत तो हम बोलेंगे कि हुआ है, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत सारा मैन पावर्स का रिक्वायरमेंट था. जैसे कि आप लोग सबको पता है कि कोविड के टाइम में कैसे मैन पावर का क्राइसिस हुआ था रिगार्डिंग द हेल्थ सेक्टर्स. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस बिजी थे बिकॉज ऑफ देयर वर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स वर रशिंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल. ओके, सो उस टाइम सबको ही पता है कि उसमें बेड का क्राइसिस था, कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बेड भी नहीं था, तो they have to use the floors or anywhere to accommodate patients for treatment. तो इस टाइम में ये या हॉस्पिटल सेक्टर में रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हुआ था. अच्छा, तो उस हिसाब से अभी आप लोग देख ही सकते हो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री का भी डाउनवर्ड्स नहीं होता है दूसरा कोई भी इंडस्ट्री से, क्योंकि वॉर हो या कोई भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो, हॉस्पिटल तो रहेगा ही. अच्छा. मेरा आपसे और एक बहुत ही अहम सवाल है कि since ISHM also deals with hospitality management and also hospital management, can a hotel manager be a hospital manager? Yes, of course, a hotel manager also can also be a hospital hospital manager, because ऐसा नहीं है कि only hospital में doctors और nurses ही रहते हैं. अच्छा. To work there, क्योंकि उधर का different kind of works भी रहता है, different works pattern रहता है. जो पेशेंट का सर्विस जो प्रोवाइड होता है, आप लोगों को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारा यू आल्सो हैव अ चॉइस फॉर योर रूम, लाइक सिंगल रूम, डिलक्स रूम और सूट रूम. तो इसलिए होटल्स या जो हॉस्पिटलिटी सर्विस का भी बहुत अहम जरूरत होता है. क्योंकि पेशेंट का अभी एक्सपेक्टेशन हो गया है कि दे आर गोइंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल और एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो दे नीड दैट काइंड ऑफ सर्विस. तो उसलिए तो जो होटल मैनेजमेंट के डिग्री भी करते हैं, तो दे हैव अ नॉलेज टू गिव अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अच्छा. तो इसलिए दे हैव अ चांस ऑफ गेटिंग देयर जॉब इन हॉस्पिटल सेक्टर. क्योंकि आजकल अगर देखा जाए, अगर हम मेजर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को देखते हैं, वो कोई होटल से कम नहीं होता है. ऑफ कोर्स, इट आल्सो लुक लाइक अ 5-star होटल. Okay. So, ma'am, you in your career, can you please tell us any incident that you would like to share? Any incident?
एक्चुअली यस, आई वुड लाइक टू शेयर अ इंसिडेंट कि एक टाइम में मेरा नाइट ड्यूटी था, तो मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी. तो उस टाइम में एक पेशेंट आया था. सी हैज़ अ बर्न, लाइक 80% ऑफ बर्न, क्योंकि उसका सामने गैस स्टोव फट गया था वाइल कुकिंग. सो उस टाइम में हम लोग एज अ मेरा उस टाइम में ड्यूटी था एज अ एडमिशन डेस्क में कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट के हिसाब से. तो वी वर ट्राइंग टू हेल्प देम, गाइड देम, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में थी देयर वाज नो बर्न यूनिट देयर. सो वी हैव टू अकोमोडेट देम टू अदर हॉस्पिटल. में हम लोग ने कांटेक्ट किया कि कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ ऐसा सर्विस मिलता है जहाँ पे बर्न पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं. तो उन लोगों का हेल्प करना या वो एम्पथाइज करना वो पेशेंट के साथ कि वो ऐसे सिचुएशन में आए हैं, तो हाउ कैन वी गाइड अस, हाउ कैन वी हेल्प अस. तो ये बहुत सारा हम लोग ऐसा फेस किए हैं, मैंने भी तो फेस और किया सबसे है. बड़ी बात यह है कि आपके पास शायद कोई मेडिकल डिग्री नहीं था. हाँ, नहीं था. तो नहीं होते हुए दैट इज वेयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर. हाँ. कि इवन दो यू डोंट हैव अ मेडिकल डिग्री, you are apt to handle patients at that point of time. Now coming to the next question related to this, when आप जब भी कोई स्टूडेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑप्ट करता है तो what does he study basically? बेसिकली जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो ऑप्ट करते हैं, दे हैव टू लर्न एवरीथिंग रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट का डिग्री जैसा रहता है. HR पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रहता है. उसके बाद दे हैव टू गो थ्रू द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे आप लोगों को मेडिकल टर्म्स वगैरह सिखाया जाता है. मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चैप्टर रहता है जहाँ पे कि हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड्स कैसे रखा जाता है, और हाउ टू गो थ्रू द मेडिकल रिकॉर्ड्स, और कैसे पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है. दैट ऑल्सो you have to study, or they have to also study about the different departments of the hospital, because अगर आपको knowledge नहीं है कि हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, तो you can't just go and work there. So we provide also good information about all the departments of the hospitals. उसके बाद accountancy भी रहता है, जहाँ पे आपको वो भी सीखना पड़ता है. तो बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है. तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ फर्क ज्यादा नहीं है. फर्क है, आई वुड से इट इज डिफरेंट, बट थोड़ा सा फर्क है. तो फॉर अ स्टूडेंट हु हैज डन हिज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, व्हाट आर जॉब्स कैन ही ऑप्ट फॉर? After completing your hospital management degree, you can opt for admission desk, the admission and discharge department. You can also apply for the customer care executive or customer care desk, जहाँ पे आपको patient satisfaction, patient का feedback, कोई complaints वगैरह हुआ, you have to handle them. ठीक है. और otherwise you can get in a floor manager का जो पोस्ट रहता है, as a floor coordinator आप लोगों को काम कर, you can get a job according to that. Otherwise MODs वगैरह रहते हैं. और अगर तो आप when you have 5 or 6 years of experience, तो आपको तो पता ही है, you can of course increase your. I see. So now मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि what is the scope of hospital management abroad, international jobs? इंटरनेशनल जॉब्स में भी रहता है कि अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या फर्दर कोई डिग्री आप ऑप्ट करते हो, तो यू कैन गो अब्रॉड फॉर अदर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे आप लोगों को जनरल मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है, या कोई ऑपरेशनल हेड का पोस्ट मिल सकता है. अदरवाइज एडमिन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है. तो बहुत अच्छा ये बात तो आप भी, मैंने ये बात जायज़ है, हमारे व्यूअर्स भी इस बात पे सहमति देंगे कि आप कोई भी कंट्री चले जाओ, होटल्स और हॉस्पिटल्स रहेंगे ही रहेंगे. So in that case, provided तो रहेंगे. Exactly. So I am sure our viewers के पास आज के डेट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट लेके बहुत सारे सवाल का जवाब उन्हें मिल चुका होगा. So thank you ma'am for taking time off from your busy schedule और हमारे viewers के साथ बात करने के लिए, answering some questions that they had. And I would also like to thank our viewers for their patience in watching this video. If you have any suggestions, anything that you would like to add, for us to add or make a new video on, you can please mention in the comment section below. And also, if you please follow us on our social media handles, which is Facebook, YouTube or Instagram, feel free to contact us at the contact details displayed at the end of the video. Thank you again for watching, and thank you ma'am for being with us.